Okay, so formal good afternoon to all of you. We continue from where we left. In the last lecture, I introduced the subject to you and gave you certain aspects with a movie clip that what is a strategy. A strategy is a situational decision or a long-term plan. Made once and implemented forever or continuously changed. So strategies are situational decisions taken keeping into mind the facts and circumstances of the case. Barabar? So I asked you to react as a manager in few situations. One was this, where I asked you that you are the manager of a particular product. So I wanted your guidance in regarding distribution. So I want your answer if you would have thought about it. Okay, few hands coming up. Good. Yes, yes. We'll start from the back bench. Yes, sir, in the check shirt. भाई अंग्रेजी में बोलेंगे ताकि एग्जाम में जैसा लिखेंगे वैसा बोलने की हम कोशिश करेंगे। जैसा क्या है, दिलों के अरमान को जब लफ्जों में डालते हैं, अबे मुशायरा नहीं चल रहा है, अपने अरमानों को जब लफ्जों में कहोगे तो तुम्हारे दिल की बात पहुंच जाएगी, लेकिन उसे जब शब्दों में लिखोगे तो वही जज्बात आने चाहिए ना सामने। तो कोशिश वही करो कि जो लिखोगे वो बोलोगे। ओके, यस। Okay, so you say it's a urban versus rural. In rural you will put smaller quantities, in urban you will put larger quantities. Sir, I disagree. The answer is wrong. Okay. Why? I'll tell you the reason also. Now this is a 12th class level answer. ऐसा होना चाहिए, बट हमको अब स्ट्रैटेजी समझानी है। हम लोग में 12th में ना हमको मस्त आदत होती समाज सुधारक जवाब देने की, सोशल वेलफेयर आंसर्स। अब जैसे आप बच्चे ने बोला wherever the purchasing power is more, we should sell larger quantities there, and wherever purchasing power is less. Now the question will come back again, how do you differentiate the purchasing power? समझे क्वेश्चन का आंसर का प्रॉब्लम? समझे बेटा आप? ठीक है। So your distribution strategy is that you will distribute sachets in those areas where the purchasing power is less, usually hostel areas, people living in smaller areas where with limited purchasing power, like labor areas. So there the people would like to spend, but at same point, one point of time their purchasing power is less. They may purchase 20 sachets over 20 weeks, but they would not purchase a bottle at once. So you will try to distribute based on the spending capacity. Okay. So now the question goes back again to my friend, rural and urban. So do you think in rural areas anybody doesn't have a spending capacity? Sir, people have. And if you ask me factually, they have more spending capacity than urban people. So the distribution will not be based on rural-urban divide. The distribution will be based on spending capacities. So you have to bifurcate, and you can see this live example going on in supermarkets. In supermarkets, you will never get a small sachet of anything. You always get a larger quantity. Reason being, तुम एयर कंडीशन सुपरमार्केट में जाते हो, सिक्योरिटी चेक करवा के एस्केलेटर से उतर के अपना सामान साइड में रख के पूरा घूम के जाओ और लेके जाओ 2 रुपए का एक सैशे। फिर सिक्योरिटी, फिर वहां पे वो स्कैन होगा, फिर उसका बिल जनरेट करेगा और फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड को दिखाओगे, ले चेक कर, और वो बोलेगा एग्जिट, थैंक यू सर। 2 रुपया में इतना तो नहीं चलेगा. So it won't work. So they consciously don't keep smaller quantities if you see, because they will not be able to earn the money that much. And you will always also see one more thing. Wherever bigger packets and bigger bottles are available, at the same shop generally sachets are not available. Because in fact, contrary to the public perception, sachets turn out to be cheaper.
Each sachet has 8 ml of shampoo, 8 milliliters. So if you buy 25 sachets bucks of 50 rupees worth, and you go and buy a bottle of 200 milliliters of shampoo Sunsilk, you will find the bottle is expensive. So they clearly do that. There's a bifurcation. So the distribution strategy is you should not make both the products available at the same place. A. B. Based on the purchasing power, you have to distribute it. So imagine beyond your P&L, balance sheet and profit and loss, so much of data and information is maintained and stored at every organization to survive and succeed in business. P&L बैलेंस शीट साल के एंड में बनता है जब सब कुछ हो चुका होता है. आपको लगता है P&L बैलेंस शीट, मतलब डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ प्रैक्टिसिंग सीए, व्हाट आई एम सेइंग इज, डू यू रियली थिंक P&L बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस will serve the decision making information every time? It never helps actually. So you need to maintain a lot of information which is outside your books of accounts for business or business purposes so that it helps. Correct? So concept clear? Most of the time students answer what? Like one answer, this answer comes rural urban. And generally people also answer that whichever product will give more profitability, I will produce more. Now that is something again an outsider's answer. This is like I am asking, or sometimes people give answers how to increase sales. I will distribute free sachets, I will do this, do that. Problem क्या होता है? Public, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये नहीं समझ पाती उसको. Guidance regarding distribution, it's not a sales promotion question. और हम लोग को स्कूल में हैबिट क्या होता है, जो भी याद आता है लिख देने का. सो SM will make you understand lengthy answer doesn't mean a good answer. So all the, मैं उसी दिन, that's why in the previous lecture I told you ना, if your business studies marks are very good, it's not a great thing, it's actually a problem because you are under a false belief कि मैं जो भी लिखता हूँ वो सही है. So that is something which will get tested as we move in chapters. So that was first one. Second one was this one. You are appointed as a channel head of a new entertainment channel supported by an established channel, news channel. The new channel has to compete against established channels like Star, Sony, Z. What kind of programs would you run in a time where family drama and reality shows are ruling the prime time? What kind of programs you will run? First of all, can you identify which channel I am talking about? Sports. लिखा रे बाबा एंटरटेनमेंट चैनल. आधा सीए तो आदमी तभी पास कर लेता जब उसको क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़ जाए. यहां बैठा हुआ कोई भी बच्चा डफर नहीं है. सीए फाउंडेशन पास करके आया है, कोविड की सेकेंड वेव में लड़के आया है. नन ऑफ यू आर अ डफर. द ओनली चैलेंज विच यू विल हैव इज यू नीड टू हैव दैट ईगल आई क्वेश्चन ढंग से पढ़ने का. What kind of programs would you like to run? बताओ आप मेरे को. अच्छा, like Akshat says quiz shows which will give money to one who answers correctly questions like KBC. Okay. Religious programs, reality shows. Avadhi has a different take. Horror shows. Prime time में भूत प्रेत दिखाएंगे, बताओ यार. Vineet, Anupama like shows are already going on Star, Sony, Z. You need to change something from there. Aha, good answers are coming here. On working days we would run a good family show and on weekend we would have comedy. Kapil Desai comes up and says, I would run investment related programs because after COVID-19, public are becoming more and more interested in the field. Shark Tank. How many of you have seen the Shark Tank? Wow. अब भाई इसी पढ़ी लिखी बैच. काय के लिए देखते हो? अस्नीर के बदमाशियों के लिए? Okay.
We'll have discussions on startups also, so no issues about that. This question basically is expecting what from you. Understand, you are coming in a market which has already established players. Please understand, you are coming in a market which is already having established players. So how will you make a place of your own? By giving the same stuff what the market is giving, or by giving something unique. So the moment I say the word unique, it has to be very properly thought out, because you can't run a 3-hour program also. So you need to give variety from 8 to 10. आधे आधे घंटे के 4 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम और डिफरेंट जॉनर्स के. This was very beautifully done by one of the channels, if you remember this name. It came and it has gone back now. ये चला गया है अभी channel. But NDTV promoted it, and it was NDTV Imagine. NDTV Imagine तब आया था जब तुलसी भाभी और पार्वती भाभी were like the prime time rock stars. It was the generation where your mother would have seen all these serials. Tulsi Bhabhi, Parvati Bhabhi, and Tulsi Bhabhi was none other than your Human Resource and Education Minister Smriti Irani. She used to work in TV shows, and she was the most admired bahu at that point of time. क्या था? क्योंकि सास भी कभी, हाय हाय, कैसे याद है देखो आप. करेक्ट. सो मैं आपको सिर्फ टारगेटिंग समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं. द चैनल डाइड, द चैनल इज नो मोर रनिंग नाउ. दैट्स ऑल्सो अनदर केस स्टडी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड दैट आफ्टर सच अ गुड स्टार्ट दे कुड नॉट मेंटेन देयर सक्सेस. एनडीटीवी इमेजिन, ये तुलसी भाभी, पार्वती भाभी, एंड देयर वाज वन मोर सीरियल कॉल्ड कसौटी जिंदगी की, जिसमें कोई प्रेरणा करके लड़की थी, उसका पति था सुजल, और उसकी करीबन 3 करोड़ शादियां हुई थी उसमें. अरे वहां बहुत फिक्स पैटर्न था, एक्सीडेंट होगा, प्लास्टिक सर्जरी होगी और पति वापस आ जाएगा, ऐसा होता था वो. इस देश ने ऐसा भी कुछ देखा है. आज घर पे जाके मम्मी से पूछना क्यों ऐसा कुछ होता था क्या, तो शील शाय अवे. सो ब्रिंगिंग यूटिलिटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट नाउ. सो हाउ डिड यू मेक अ प्लेस? लॉकडाउन में आपने रामायण देखी? आपको तो मतलब आप अनफॉर्चुनेटली या यूं कहूं फॉर्चुनेट जनरेशन को जिनको पकड़ के बिठा दिया घरों में और रामायण दिखा दी, पर बीच की एक जनरेशन का लॉस हुआ है. मैंने देखी थी, मेरे टाइम सिर्फ दूरदर्शन था, सो आई कुड नॉट डू एनी दर्शन अदर देन दूरदर्शन. सो पर बीच का जो चैनल युग था तब नहीं था. सो एनडीटीवी डिड व्हाट? दे टारगेटेड टू क्रिएट रामायण वंस अगेन. एंड व्हाट डिड दे डू? देयर एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी वाज, उनकी जो रिसर्च थी, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस? बोले किराने की दुकान और हनुमान जी का मंदिर, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पे आदमी महीने में 2-3 बार जाता ही जाता है. दिस कंट्री इज गॉड लविंग नहीं, दिस कंट्री इज गॉड फियरिंग. तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है. एंड हनुमान जी किसके भक्त हैं? सेवक हैं वो तो उनके, और वो इतने परम सेवक हैं कि उनके भगवान से ज्यादा मंदिर हैं. हैव यू एवर थॉट दिस? हनुमान जी के मंदिर राम जी के मंदिर से ज्यादा है, बिकॉज उनका सेवा भाव ऐसा है. हनुमान जी's activities are a great management case study. He was one person who was not requiring any pad, pratishtha, padvi or recognition. He never went for promotion. He never asked for a salary hike. He never asked for a job description. But he was committed to Ramji. He could have gone and said like a modern day corporate employee, this is not fair Ramji at all. I am one of your most loyal sevaks, and see, to make a strategy you have a Jamwant, to make a pool you have Nalnir, when you have to do a Sandhi you have got Sugriv. मुझे क्या सिर्फ जड़ी बूटी लाने के लिए रखा है? कंप्लेन तो हो सकती थी ना, राम जी इट्स नॉट फेयर, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर. विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मैं उनका परम भक्त हूं मैं भी, मतलब बट इट कुड हैव हैपेंड दैट वे. नो, वो सीधे सीधे क्या बोले? बोले आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा. ये कमिटमेंट टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स जॉब और टुवर्ड्स योर पैशन बहुत अलग होता है. यू फाइंड दिस इन सचिन,
as a cricketer. Make me a captain. Don't make me a captain. You make me bat at fifth. You make me bat as an opening person. You ask me to bowl. I will do everything. I love to play. That commitment. तो हनुमान जी के मंदिर के बाहर वो फ्लेक्स लगाया गया है. हनुमान जी का जो मंदिर होता है, तो मंदिर के बाहर वो आप उसको कुछ थोड़ा सा ऐसा देखना, ऐसे मंदिर है तो मंदिर के बाहर से वो फ्लेक्स लगाते ही हूँ. और वहां पे लिखा हुआ था कि रामायण सोमवार से गुरुवार 9 बजे. और वो जाके पंडित जी को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि पंडित जी हम एक चैनल से आए हैं और हनुमान जी जिनकी सेवा करते हैं राम जी की, हम चाहते हैं आप हम उनका ये राम दरबार, ऊपर राम जी की फोटो भी थी इधर, तो बोले राम दरबार की फोटो लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों को कलयुग में समझाएं कि ये सबसे अच्छी बात है. अच्छा, टारगेटेड ऑडियंस भी मंदिर आती हैं. जनरली आते दादा दादी और नाती पोतों के साथ, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स फील दैट वी विल ब्रिंग आवर चिल्ड्रन एंड दे विल लर्न द कल्चर. Mama papa are always busy in their own work, so grandchildren are taken care by nana nani, so they went there and पंडित जी प्रसाद देते थे तो बोलते जा रहे हैं सबको सोमवार से गुरुवार 9 बजे राम जी की कहानी. इमेजिन द टारगेटेड पोजिशनिंग एट अ वेरी लो कॉस्ट. अब आप एक होर्डिंग लगाओ रीगल टॉकीज पे इंदौर में, तो 3 लाख रुपए महीने का खर्चा है उसका, और यहाँ एक फ्लेक्स बनाने का 500 रुपया खर्चा नहीं है, और वो फ्लेक्स का ध्यान पंडित जी खुद रखेंगे क्योंकि राम जी की फोटो है उस पर. सो यू आर गेटिंग टू द टारगेटेड ऑडियंस विद द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू जनरेट मैक्सिमम टीआरपी. विद इन 4 एपिसोड्स इट हैड बीटन तुलसी भाभी एंड पार्वती भाभी. 4 एपिसोड्स. दैट वाज वन. तो अभी आधा घंटा चला. प्राइम टाइम कैसे कैप्चर करूं मैं अब? तो दैट वाज वन. सेकेंड, you remember one of the reality shows, starting reality shows called झलक दिखला जा, यहाँ पे सेलिब्रिटीज कपल बना के डांस करते थे. अब तो आप इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह सब कुछ देख रहे हो. सो सेलिब्रिटी कपल, और उसमें कोरियोग्राफर सरोज खान जज होती थी. एंड सरोज खान यूज टू गिव यू अ विसल, जैसे आजकल हुनर सलाम चल रहे हैं. हु इज गिविंग दैट? हाँ, शिल्पा शेट्टी देगा. Yeah. और वो कौन लकड़ियां तोड़ रहा? बादशाह. बादशाह इज लाइक ब्रेकिंग दोज लकड़ी एंड एवरीथिंग. और वो हमारे मिथुन दा पहले होते तो वो यूं करते थे. सो इट स्टार्टेड विथ सरोज खान, झलक दिखला जा. नॉट दे थॉट everybody wants to dance like celebrity but they don't know how to dance. So they went सरोज खान and said, मैडम आपके साथ एक शो करना है. बोले क्या? नच लेवे विथ सरोज खान. And that नच लेवे विथ सरोज खान was like she used to take a song and tell you how to dance for 4 or 5 days in 30 minute episodes. And उसकी टाइमिंग रखी थी दिन में 3-4 बजे वाली, बिकॉज हाउसवाइफ्स तब फ्री होती हैं. आप समझ रहे हो? कस्टमर माइंडसेट समझ के प्रोडक्ट पोजीशन करना, मैं वो सिखाना चाह रहा हूं आपको. तो वो दिन के टाइम बाकायदा खाना वाना, बच्चों को स्कूल से आ गए खाना वाना खिला दिया, वो 3 से 5 का जो फ्री टाइम होता है उनके पास, जो रेस्ट करती हैं आंटी जीज, मम्मी, मासी, बुआ, तो वो उस टाइम बाकायदा सारी आंटियां टीवी स्क्रीन के सामने चुन्नी ऐसे बांध के पल्लू फंसा के तैयारी हो ऐसी, बिल्कुल हम डांस करेंगी. इट वर्कड वंडर्स. चैनल गेन्स मोमेंटम, यू गेट टीआरपी. टीआरपी समझते हो ना? सो सेकेंड सक्सेसफुल थिंग. थर्ड, दे वांटेड सम मोर सेंसेशन इन द इवनिंग. So they created something called that Swayamvar. And the first one to come was Rakhi Sawant for a Swayamvar. क्या बुरे हालात है हमारे देश के, सोचो. ब्यूटी डेफिशिएंसी किस लेवल की थी और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी किस लेवल की थी कि लोग बैठ के वो देखते थे. एंड राखी सावंत की किस्मत देखो, वो स्वयंवर चला रही खुद का. जानते हो आप कौन है वो? ये भी जानते हो तुम? कुछ जानने लायक कुछ है वो, पर ठीक है. दैट्स हाउ एनडीटीवी इमेजिन एंटर्ड इनटू द मार्केट. तो क्या सीखा सर? ध्यान से सुनना. आई एम नाउ कमिंग टू द जिस्ट. इधर, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन द मार्केट? बाय गिविंग वैल्यूएबल कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इसको एक वर्ड आगे आने वाला है, बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू टारगेट कस्टमर. नो, नॉट कस्टमर,
target customer. So this is the main objective of strategic management. Delivering superior value to target customers. You can't keep everybody happy. So you can't have all the people as your customer. So you need to have a target market. And you need to give superior value to target customer. That's the objective of strategic management. And that's what this channel did. अब आप बोलोगे फिर बंद क्यों हो गया? So that's a different story. कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो. Now tell me one thing. If you see Shark Tank for 365 days, KBC for 365 days, will you value it? So you will not value it. A. B. Do you really think you can produce Shark Tank like episodes on a daily basis? Because whenever a person is coming to pitch, there is a lot of background work which has gone through. अगर वो पिच करने आ रहा है within 3 minutes, तो उसका सब सेटअप जमाना, डेमो देना, 10 मिनट का जो उसका कंटेंट क्रिएट होगा उस पर मेहनत लगती है. सो देयर वाज अ प्री स्क्रीनिंग डन, मतलब कितने एप्लीकेंट्स आते हैं उसमें से कुछ को पिच करने दिया जाता है. सो डेफिनेटली इट टेक्स टाइम. एवरीबडी वुड लव टू सी अमिताभ बच्चन ऑन अ डेली बेसिस. इट्स अ रिचुअल इन इंडियन हाउस होल्ड. बट क्रिएटिंग दैट कॉन्टेंट, गेटिंग हिज टाइम, and specifically it loses its value if it's available so easily. So therefore it's always seeing scarcity बना के रखो. So that's the reason that people strategically design such things. एक तो ये हो गया. Next one कौन सा था? ये वाला. इसका बताओ मुझे अभी. Yes, yes. Any views on this? एक आपने आंसर दिया अभी बाकी. हाँ बिटिया बोलो. Okay, so you are saying that any youth icon or any star should be taken up in the advertisement because youth are the main consumers of this particular product. Okay, I'll give you another example. Sprite never uses a star, but they are still popular. Sprite clear है. Remember? आपको जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन हो ना कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है या मेरे लिए ये कठिन है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये कोल्ड ड्रिंक में 1% की भी अच्छा ही नहीं है. कितनी? 1% की भी अच्छा ही नहीं है. लेकिन मार्केटिंग की मेहनत इसको आपकी जीवन की खुशियों का हिस्सा बना चुकी है. आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ नहीं है फिर भी वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो तुम में तो कुछ है. इंस्पिरेशन ढूंढनी हो तो हर जगह से ढूंढी जा सकती है. मतलब आप समझ रहे हो, 0% यूटिलिटी एंड 0% हेल्थ बेनिफिट के बावजूद इट इज द फर्स्ट थिंग टू बी ओपनड अप व्हाइल वी आर हैप्पी एंड वी वांट टू सेलिब्रेट समथिंग. ये है मार्केटिंग का जादू. बोल भी नहीं सकते कोल्ड ड्रिंक वाले, इसको पीने से मेरा बच्चा 3 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा हुआ. एपांग ओपांग झपांग, दिमाग की शक्ति 2 से 5 साल तक, तैयारी जीत की. कुछ नहीं है. आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक एड को ऑब्जर्व करना, जस्ट ऑब्जर्व एनी ऑफ द डैम कोल्ड ड्रिंक एड्स, दे विल नेवर डिस्कस एनी लॉजिक. दे विल टेक यू टू अ सेंसेशनल कॉन्सेप्ट. माउंटेन ड्यू, ऊट पटांग जगहों से कूदेंगे. थम्स अप, टेस्ट द थंडर. पागलपंती जरूरी है, मिरिंडा. उसके बाद खुशियां खोलो, कोको कोला. ध्यान गया आपका? सो टेल मी वन थिंग. अरे कितने खुश हो जाते हैं यार ये सब ऐसी बातें सुन के. सर 2 महीने बाद कोई दुनियादारी की बातें कर रहा है.
नहीं तो सुबह से लेके शाम तक सेक्शन, सब सेक्शन टैली, डिड नॉट टैली, और एक सेक्शन समझ में आया धीरे से मुस्कुराते हुए, हावेवर मैं इन बेंचेस पे रह चुका हूं, मैंने समय बिताया, आई कैन रियली कोरिलेट व्हाट गोज थ्रू व्हेन वी आर हियर। ओके, और क्या अपन तो एक बार में सीए पास भी नहीं हुए ना? आप में से किसी को भ्रम है क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट हूं? हाँ हो तो दूर कर लेना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट नहीं हूं, सेकंड नहीं, 5वां अटेम्प्ट फाइनल में। आई हैव 5 स्टार्स। क्या है, तुम्हारे पास बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी है ना। फाउंडेशन एक बार में पास हो गया था, इंटर भी एक एक बार में पास हो गया था, फाइनल में आके जो लैला ने मेरे को गले लगाया, थका दिया मेरे को सच्ची में। और मुझे पार करवाने वाले फिर फाइनल में तरुण सर थे, बिकॉज वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर अजीब हो गया था, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया था तब से। 24 नंबर का ऐसा पॉइंट, ऐसा टॉपिक आया था जो हमारे मॉड्यूल में था ही नहीं। इन सीए इट कैन हैपन वेरी नेचुरली टू ईच अदर, मतलब आप जाओ और ये तो है ही नहीं भाई। अच्छा, एक तो का पेपर पे सब्जेक्ट भी नहीं लिखा था भाई, आज एफएम का पेपर पढ़ के आऊं, ये है एफएम का ही ना, तो ऐसा होता है। सो डोंट वरी, सब हो जाए, समझने की क्षमता को बढ़ाते चलो, सब हो जाएगा। आप में से किसी को भ्रम हो तो आई क्लियर्ड इंटरमीडिएट्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट 1 by 1 एंड देन फाउंडेशन ऑल्सो। फाइनल आई गॉट स्टक, सेकेंड ग्रुप आई कुड क्लियर, बट फर्स्ट ग्रुप आई गॉट स्टक एंड आई टुक ऑलमोस्ट लाइक 5th अटेम्प्ट आई क्लियर्ड इट। सो हो सकता है ऐसा, फिर भी सरवाइव करके यहां तक आ गया हूं, तो आप भी आ जाओगे। और आप ज्यादा समझदार हो मुझसे, ये बात सच है, क्योंकि मैं 18 की उम्र में इतना नहीं सोच पाता था जितना आप सोच पाते हो। आप मेरे को अभी चेक करोगे, सो आई हैव मोर एज विथ यू कंपेयर टू यू, सो मैं ज्यादा बोल पा रहा हूँ एक सब्जेक्ट के बारे में। डेफिनेटली यू आर एब्जॉर्बिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस, योर ब्रेन इज मोर फर्टाइल देन माइन एज ऑफ नाउ। Don't expect me to do accounting questions or company law questions right now. I might be expert sounding at this, but you are far more superior and expert than me. Trust me, it's true. So feel good first of all. हाँ सर, ऐसी थोड़ी बातें करते रहा करो, अच्छा लगता है। So please make sure you all are doing good effort, and ऐसा है ना, वो खुद को सेल्फ अफर्मेशन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होता है। इमेजिन एडवर्टाइजमेंट्स गोइंग टू व्हाट एक्सटेंट एंड सेलिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, मतलब 1% अच्छा ही ना होने के बावजूद बेच देते हैं, एंड दे ऑलवेज सेल अ सेंसेशन। स्प्राइट वाला क्या करता है, वो किसी को भी ऐसा बेवकूफ बनाने वाली चीज बोलता है। एड्स आर वॉच, मतलब टू बी वॉच्ड होती। कोल्ड ड्रिंक के एड हम स्किप नहीं मारते, मजा आता है देखने में। दे क्रिएट ह्यूमर, दे क्रिएट अ स्टोरी, क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू सेल। वो बोल ही नहीं सकता आपको कि मेरा प्रोडक्ट पी लो आप, खा तो इससे आप स्मार्ट हो जाओगे, इंटेलिजेंट हो जाओगे, वो तो है ही नहीं। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, कोल्ड ड्रिंक तो शुरू से, तुम जब से पैदा हुए हो तब से है, जब से तुम्हें समझ पड़ी तो तुम रसना से कोल्ड ड्रिंक पे ग्रेजुएट कर गए, और अब कोल्ड ड्रिंक से आगे हार्ड ड्रिंक पे ग्रेजुएट करने की उम्र आई है। एक चीज समझो आप, कोल्ड ड्रिंक्स एक काम और करती हैं ये, कि इनकी पोजीशनिंग का एज ग्रुप है 5 to 16। ये 5 to 16 कांस्टेंट है, पर हर रोज कुछ बच्चे 5 साल के हो रहे हैं और कुछ लोग 16 क्रॉस कर रहे हैं। इस टारगेट ग्रुप के बीच में सेंसेशन रेगुलर बनाए रखना जरूरी है, अदरवाइज थम्स अप, पेप्सी, कोक जब से तुम पैदा हुए हो तब से हैं, फिर भी वो ऐड करते हैं। ऐड इसलिए करते हैं कि पॉइंट ऑफ परचेज पे जब तुम जाते हो, दैट मीन्स ऑन अ काउंटर,
So the recall value shall be there in your brains. That whichever ad you remember the last, you prefer that cold drink. You try to relate yourself to that sensation, to that story. Like Hrithik Roshan coming on a bike and saying, इसको कूदना है, वो माउंटेन ड्यू पिया रखा और कूदा. तो अब अपने को भी किसी दिन ऐसा हम दुखी हैं, हमको ऐसा दोस्तों से बात कर रहे हैं, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, मैं उसको दिखा दूंगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप्स. तो उस समय माउंटेन ड्यू ऐसे अपने आप को खुशियां चाहिए घर में सेलिब्रेट करना तो कोको कोला. इमेजिन दे प्ले ऑन योर माइंड्स एंड दे सेल समथिंग विच इज ऑफ नो यूज. स्ट्रैटेजीज. अब चैप्टर चालू करें. So now the point what we understand with all this discussion is, sir, what SM is all about. It's about creating something better, making a place in already existing market, and develop your business to deliver superior value to your target customer. First chapter, you have total 8. Okay, 8 chapter hai. Out of those 8 chapters, first we'll introduce to the concept of policy. बिकॉज पॉलिसी से बनती है स्ट्रैटेजी. फिर मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 4. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छा क्यों है, उसकी बुराई क्या है. एंड देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ये 6-7 टॉपिक पढ़ने तुमको फर्स्ट चैप्टर में. तो पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो मैं आपसे 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछता हूं. पॉलिसी. अच्छा, स्कूल में पता है क्या 4-5 शब्द होते जिनको हम ओवरलैप करके कुछ भी लिखते हो और किसी को पता ही नहीं चलता है, बस नंबर आते हैं. बताता हूं. पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप, मेथड. सब एक ही हो जाता है पर वो है नहीं. फिर से पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप, मेथड. और अभी मैं बोलूं डिफरेंशिएट करो तो तकलीफ हो जाती है क्योंकि याद नहीं है. पॉलिसी, अरे वो होता ना पॉलिसी, वो पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी. यू विल गिव एग्जांपल्स, यू विल गिव एग्जांपल्स रादर देन डिफाइनिंग इट. मतलब मैं अभी क्लास में बोलूं डिफाइन एन असेट एंड ए लायबिलिटी, इट एक्चुअली पीपल गेट टू अ पॉज. हाउ डू आई डिफाइन एन असेट? फिक्स्ड असेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, डेटर्स, कैश. अरे ये तो एग्जांपल्स हैं. इमेजिन somebody coming and asking you define an asset और तुम क्या बोलो? Embarrassing, but it's a true story. One liner definition है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का. Any resource which generates future economic benefits is an asset. एक बार फिर से बोलूं, पता होगी यार. Someone be like, पर ऐसी चीजें याद रखा करो. Not for your own sake, but for speaking to non-commerce people. मेडिकल वाला पहले साल में खड़े होकर पूरी बॉडी की एनाटॉमी सुना देगा आपको. तुम इंटर में आ गए हो, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन तो याद रखो यार. अपने प्रोफेशन की इज्जत का सवाल है. बाहर ये मत बोल देना सिलेबस में आया नहीं था. ऐसा नहीं होना चाहिए. So now you tell me, calculating depreciation by WDV or SLM. So when you calculate depreciation, it's a policy, procedure, rule, step या method? Method. The overall depreciation cannot go beyond the overall cost of the asset purchased. Policy, procedure, rule, step, method. Rule. Very good. I may select WDV or SLM. That's a policy. Good. Good going. To calculate depreciation, first I will take the cost of the asset. पूरा बोलना ही नहीं दिया मेरे को. रुको तो सही, ये पूरा पैराग्राफ बोलूं फिर बोलना.
To calculate depreciation as per, let's say, WDV method, I need to take the opening balance of my asset, apply the rate of depreciation, calculate the depreciation and debit that particular amount to this particular current year, and for the disclose, मैं बोलूंगा पूरा, खत्म नहीं किया अभी, याद करके आया हूं, मेरा मीम बना दिया साला। वो वाली बैच ने नीचे से बोले दीपक सर को ऐसे बीच में रोक दो, तो बोलते रुको मैं बोलूंगा, मैं याद करके आया हूं। सुनो तो सही, पैसा दिया तुमने, वसूलो। क्या बोला था, मुझे भुला दिया यार। So when I charge it to the P&L and then finally to disclose that from the cost of the asset, that amount is reduced. Now all this is what? Procedure. Very good. So there are two methods, WDV or SLM. Whatever you use, when you execute that method, that is a procedure. So method ka procedure, and under that one activity is a step. Hello. So selecting depreciation is a policy matter, accounting policy. जैसे stock valuation है तो FIFO weighted average cost. पता है ना इतना तो? सुना लगता है या सुना लगता है? सुना लगता, ठीक है. So selecting a depreciation method is a policy method, and then you select a procedure. Whatever method you select, that method will have its own procedure. Now procedure will comprise of a steps. तो सबसे छोटी tiny क्या होगी? Sequential steps performed creates a procedure, and that procedure will be under a method, and that method will be selected based on a policy. तो सबसे बड़ा generic word कौन सा हुआ? Policy. What is a policy? Policy is a guiding principle which decides how do we behave and act in a particular way. Policy is a guiding principle which decides how do we behave and act in a particular way. And under those policies, there are various methods. Under that, we pick up any method. It will have its own procedure, and procedure is a compilation of steps. अभी समझा? Hello? तो ये accountancy यहाँ क्यों डिस्कस हो रही है? Take it to business. I will give 60 days credit to my customer. Policy. One customer comes and buys something in bulk and wants extra discount which is usually not given. But to keep the customer happy and acquire new customers, I give extra discount. It is policy or strategy. But discount may not go beyond a certain level. It is not rules. Based on the overall policy. Reason being, rule तो statutory authority देगी ना. मैं बिजनेस चलाने के रूल तो मेरे को तो कंपनी लॉ, इनकम टैक्स के रूल्स हैं. बाकी मैं कस्टमर को अक्वायर करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, हाँ या ना. लाइक हैविंग अ कॉमन, लाइक इफ आई वांट टू फाइट कंपटीशन, सो देयर इज वन वे टू फाइट कंपटीशन इज टू रिड्यूस योर प्राइसेस. बट रिड्यूसिंग योर प्राइसेस विल इनिशिएट अ प्राइस वॉर, एंड प्राइस वॉर में दोनों दुखी होते हैं. मजे कस्टमर के होते हैं. सिंस 2016 तुम सबके मजे हैं बिकॉज ऑफ जियो. अभी मजे हैं या मजे जा रहे हैं? अब जा रहे हैं सर, अब पैसे बढ़ रहे हैं. वो तो होना ही था. सो एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी, what you may do, you may not reduce price, but you may increase the free items along with the same price. So now if I give one extra item free, like गुड डे के साथ चाय का कप फ्री, आता है आजकल ऐसा. कभी कभी ऐसी स्कीम्स आ जाती हैं. चम्मच भी आता है. हाँ, वो अलग अलग कुछ भी करते रहते हैं वो लोग. सो व्हाट इज दैट? दैट्स अ पॉलिसी और दैट्स अ स्ट्रैटेजी. सो आई वांट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बट विदाउट रिड्यूसिंग अ प्राइस. समझा? तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस किससे मिलेगा? पॉलिसी से या स्ट्रैटेजी से? हाँ, अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना. पॉलिसी से स्ट्रैटेजी बनेगी या स्ट्रैटेजी से पॉलिसी बनेगी? पक्का? पॉलिसी दायरा सेट करती है और उस मैदान में लड़ने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हो आप. यश बाबू, एक मिनट. यश आहूजा जी,
पॉलिसी दायरा बनाएगी, उससे स्ट्रैटेजी बनेगी। बराबर? ठीक है, अब आपको जरा नोट्स के दर्शन करवाऊं। नोट्स आपको कमिंग वीक में मिल जाएंगे। आप सब लोगों को हर्षित ने वो मैसेज भेजा कि नहीं, बैच कोड वाला? टेलीग्राम पे भेज दिया हर्षित ने? भेजा होगा आप लोग, क्योंकि मेरे को अभी रिक्वेस्ट, बैच ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट बहुत कम आई है। आया होगा रे। अच्छा, नहीं आया तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप वो बैच में रिक्वेस्ट डाल देना। अच्छा, अच्छा, जो बोध ग्रुप वाले हैं उसमें आया है, उसमें सब्सक्राइबर ही कम है। ओके, 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 नाउ लिसन, लिसन, लिसन। अरे अच्छा, अच्छा, ठीक है, इधर इधर, आई गॉट इट, इधर इधर इधर। आप लोग को बैच में नोट्स वगैरह सब एक्सेस मिलेगा। एमसीक्यूज टेस्ट जो मैंने परसों बताया था, आप मोबाइल ऐप में जाते हो तो नीचे 4 टैब दिख रहे होंगे, होम, बैचेस, स्टोर, चैट्स, ऐसा कुछ दिख रहा है? तो उसमें नीचे बैचेस में जाओ। बैचेस को टच किया तुमने, साइड में प्लस दिख रहा है, अभी आ रहा होगा नो बैचेस। आप, वो पुराना वाला होगा ना आपका। तो मेरे वाला लिंक से डाउनलोड करने का ना रे पापा। आप लोग के पास एक एनपीए वाला ऐप होगा, वो अलग है। मैंने जो मेरा ऐप दिखाया था आपको, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स फॉर सीएसीएस। आईओएस का लिंक मैं भेजूंगा बेटा, मैंने बोला था मैं आईओएस का दूंगा। मेरे वाले ऐप में वो बैच कोड मांगेगा, आपको बैच कोड लिखना है। मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, आप वो बैच कोड लिख देना उधर। द बैच कोड इज दिस, राइट इट। इसको क्या हो गया? आया आया। ये कंटिन्यूस सीए इंटर नवंबर 22 विदाउट गैप। अब वो रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास टू ऐड यू इन द बैच। ठीक है ना? कर दिया? Now let me take you to your notes. This will be your book, which will be given. We will have 8 chapters. ओए, इधर ध्यान, इधर। We will have 8 chapters. The first one is Introduction to Strategic Management. Okay. This time you will be getting 2 books. This was earlier a 250-page book. I have made it into 2 parts now. कल मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। MCQ case books will be अलग and the text will be different. So this is a mix of both. This is your first chapter. So ये मैं आपसे अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ। चैप्टर में ये 4 चीजें पढ़नी है और मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? पॉलिसी मैनेजमेंट,
ये कॉन्सेप्ट है। फिर स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट को डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी आएगा, फिर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस आएंगे, और 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ये पढ़ना जरा मेरे सामने फटाफट, इसको जल्दी से पढ़ो क्योंकि मैं समझा चुका हूं ये वाला। पीछे तक विजिबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है तो पहले ये पढ़ लो, फिर सेकंड कॉलम जूम इन करूंगा जल्दी से। हाँ जी, डन। इसके प्रैक्टिकल रेलेवेंस ये रहे। डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी मैटर। कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड देन चार्जिंग इट टू अकाउंट, it cannot exceed the overall cost. Find the cost, estimate the useful life, charge the rate of depreciation is a method, and calculating depreciation under WDV or SLM as per the given procedure. ठीक है? अच्छा, तो अब ये लाइन समझाओ मुझे वापस से। पॉलिसी के बेस पे स्ट्रैटेजी बनेगी या स्ट्रैटेजी के बेस पे पॉलिसी? पॉलिसी फाउंडेशन स्टोन ले कर देगा, उसके बेसिस पे आप काम करोगे। लाइक फ्यू बिग कॉर्पोरेट्स हैव अ नो ब्राइब नो हैंकी पैंकी पॉलिसी, भाई हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये मजाक लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ जुगाड़ करे इतनी बड़ी कंपनी बन ही नहीं सकती। और स्पेशली जो बच्चे बिजनेस कम्युनिटीज से आते हैं, जिनके घरों में बिजनेस होता है, वो डिनर टेबल पे यही सुनते हैं, इतने में छुड़वाया, इतने में ये हुआ, उतने में वो हुआ। 4 कम्युनिटी ज्यादा बदनाम है, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, बणिए। इन चारों क्या, प्लीज 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 एकदम गदगद न हो व्यक्तिगत रूप से, मैं जनरल बातें बोल रहा हूं। आप लोग प्लीज मेरे को है ना टाइपकास्ट मत करना। एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर, इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू द रियल ब्लंट फैक्ट्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स अलाउज मी टू स्पीक दैट। तो सुनिए, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं। सो बीइंग अ सिंधी, व्हेन आई वेंट टू अ बिगर कंपनी, आई ऑल्सो हैड द सेम डाउट। डाउट क्या? आई हैड अ बिलीफ। डाउट की जगह बिलीफ, मैं बस होता ही होगा। तो आई यूज टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू चेक कि रिश्वत देते कैसे हैं। सी, बिकॉज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 10,000 से ऊपर का खर्चा कैश में कर नहीं सकते हो। तो बड़ी कंपनी की जब सब चीजों की रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो लाख, 2 लाख, 5 लाख की रिश्वत अकाउंट फॉर कैसे होगी? सीए करते हैं तो ऐसा भी सोचना चाहिए ना। तो आपको अकाउंट हेड मिलेगा, कुत्तों को खाना डाला 5 लाख। फैसिलिटेशन चार्जेस, ऐसा कुछ नहीं होता है, बता दूं। I did extra efforts to check in a bigger corporate. तो जो सीईओ जिसके साथ ऑडिट डिस्कशन करा वो भी एक लेवल अप था। तो मैंने उससे एक दिन ओवर द लंच, मतलब व्हेन यू आर इन कॉर्पोरेट एंड व्हेन यू इंटरैक्ट, आई वाज इंटरैक्टिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी ऑफ दिस कंट्री, HUL. I was privileged to work there. So I went to him. Siddharth, his name. Siddharth was his name.
एंड वहाँ बहुत प्रोफेशनल सिस्टम है कि आप ऑडिट टेबल पे जब बात कर रहे हो तो आप फुल बात करो, जब लंच करते हो तो बिल्कुल और क्या चल रहा है, दुनियादारी, परिवार कैसा है, पिक्चर देखिए, ऐसा होता है। तो खाना खाने का 2-5 मिनट का राउंड लगाते हैं। 15-20 दिन ऑडिट चला, फाइनलाइजेशन की तरफ था। मैंने सिद्धार्थ, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, डू यू माइंड? बोले प्लीज गो अहेड। मैंने, यार आई हैव बीन रियली वर्किंग हार्ड टू फाइंड हाउ डू यू ब्राइब। मुस्कुराया, बोले एज एक्सपेक्टेड। तो बोला इवन व्हेन आई जॉइंड द कंपनी इवन आई थॉट सो। तो बोले आई वाज गिवन द विजडम फ्रॉम वन ऑफ द सीनियर्स। मैंने, व्हाट वाज दैट? बोले आप कहाँ से हो? मैंने, मैं इंदौर से हूँ। बोले मैंने कुछ समय ट्रेनिंग का भोपाल में बिताया है, और भोपाली लोग उर्दू में बातें बड़ी अच्छी करते हैं, मैं आपको उसी भाषा में समझाता हूँ, आप मैच्योर लगते हो, उसको उस सेंस से समझना। मैंने, जी। लाइक बिगर कॉर्पोरेशंस, मैंने ना, क्योंकि आपको पता है आपका मेरा पब्लिक परसेप्शन दुनिया को क्या है, आप और मैं प्रॉफिट सेट करते हैं। पीपल थिंक दैट वे। हाउ कैन यू एंड मी सेट द प्रॉफिट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इट्स द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ना। सो बिगर ऑर्गेनाइजेशन में बोलता है, बोले यार भोपाली एक लाइन याद आ गई मेरे को। बोले क्या? बोले उसको गलत सेंस में मत लेना। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द 50% ऑफ द फीमेल जॉनर सिटिंग हियर, बोले उर्दू में कहा जाता है हसीना का हुस्न उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। अब इसको इंटरप्रेट बहुत अलग अलग तरीकों से किया जाता है इस सेंटेंस को। लाइक इट्स अ सेक्सिस्ट कमेंट समटाइम्स, बट उसका कंटेक्स्ट क्या था? बोले दीपक, अंडरस्टैंड, वी आर ऑपरेटिंग विद मोर देन 100 फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री, एंड एवरी फैक्ट्री requires around 20 government departments to interact with. So in all there are 2000 interactions if they come once in a year, and if they come every 3 months, so multiply it by 4, Deepak, it's 8000 interactions including GST, Factories Act, PF, ESI, etc etc. Bole if I start bribing them na, the mouth will become bigger and bigger and bigger and bigger every time. And then all these expenses which I will pay, I will end up charging to my consumer, where I will become uncompetitive. तेल तिल्ली में से निकलता है भाई, रिश्वत दोगे तो ग्राहक से ही वसूलोगे। बोले हाउ कैन यू थिंक आई कैन पुट अ कॉस्ट इंक्रीज टू अ पेप्सोडेंट और टू अ लक्स when I already have a Colgate Palmolive in front of me? Bole, it is so easy to say that we bribe. Bole, for us, it is so easy to employ chartered accountants like you to come and check everything is in order or not. We paying you salaries is far more affordable rather than we bribing officials. So here the Hasina is not a girl. Hasina is HUL. And her husn is not her body, her size of the company. So bigger corporations don't bribe. दिमाग के जाले झाड़ लेना। तुम्हारे सर ने ही बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके ढूंढने की कोशिश कर ली है, नहीं मिला। I was privileged to work for HUL, ITC as well as Tata Group. मतलब तीनों looked up organizations हैं। So ऐसा है। आइए एक जरा सा पॉलिसी स्ट्रैटेजी पढ़ लेते और सब पॉलिसी के लिए जैसे बताया, इट लेज डाउन द बेसिक स्फीयर, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स। इधर मैं पैरेलल ऐसा जूम इन करके पढ़ाता जाता हूं, पीछे वाले थोड़ा ध्यान से देखें। इट्स मैटर ऑफ 5 or 6 days, देन यू विल हैव दिस बुक इन योर हैंड। Ideally, I was not supposed to be here. I was jumped up. So I had to come in when PDF तो तैयार है, प्रिंट हो रहा है वो, ऐसा है। So general guiding principles which decide how do we behave and act. Strategies are, जरा पढ़ते जाएंगे मेरे साथ तो अच्छा रहेगा। Situational decisions taken keeping into mind the facts and, इसके बाद आता है scope. It lays down the basic sphere on which the management will, and then within the policies laid down, the management will prepare usage. Policies will be used in day to day, barabar, and strategies in to handle a particular matter. Relevance. Policies are relevant for a longer time.
इट इज अ स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कैसे काम करेगा उसकी पॉलिसीज डिसाइडेड होती है। जैसे वन इज अ पॉलिसी लाइक नो ब्राइब पॉलिसी, वी वोंट ब्राइब, जो मैंने अभी आपको समझाया, वी वोंट ब्राइब विद अ पॉलिसी, वी वोंट ब्राइब एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वॉट एवर क्वेश्चंस दे हैव, लेट देम आस्क, वी विल फॉलो द लॉ। So the decisions that determine the direction of an organization and shapes its future. Policy decisions होते हैं ना कि हमने ये डिसीजन लिया, हम ऐसे चलेंगे। For the moment, now strategies are for the moment and is situation specific. It changes according to the situation and circumstances. Strategy applied once may not be useful again if applied to the same. आपको पता चल गया कि कैसे रिएक्ट करता है वो। So example, credit policy, discount policies are an example of a policy. And then pricing strategy of Reliance Jio to give voice and data calls free for first 6 months for entering the market. मैनेजमेंट शब्द दो जगह पे यूज होता है। टॉप लेवल के जितने लोग होते हैं उन सबको भी कंबाइन कर लो तो क्या कहते हैं, ये कंपनी का मैनेजमेंट है, हाँ या ना? और मैनेजमेंट मतलब आप जब ऊपर लेवल पे डिसीजंस लेते हो उनको जब नीचे लागू करना है तो वो भी तो मैनेजमेंट है। सो वर्ड मैनेजमेंट विल बी यूज्ड इन टू कॉन्टेक्स्ट्स। वन इज top level people who are deciding are also called the management, and the activity by which they decide to get their decisions implemented in reality is also called management. Hello, okay, इनसे मिलिए। ये है छोटा चाणक्य। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा असीम सर चश्मा नीचे करके बोल रहे हैं। तो जब जब ये मिले आपको इस किताब में, इस किताब में ये आपको बहुत बार मिलेंगे, ये जब जब मिले तो समझ लेना किसी महान व्यक्ति की डेफिनेशन है। मैंने ऐसा आइकॉन सेट कर दिया उनके साथ। होता ना वो बड़े बड़े लोग क्या बोल गए, तो बड़े बड़े लोगों की बातें जब बोलने की बात आती है तो ये छोटा चाणक्य, इट्स अ वेरी क्यूट कार्टून विच आई बोरोड फ्रॉम इंटरनेट। मुझको अच्छा लगा बड़ा, मैंने ले आओ मॉड्यूल में कुछ तो अच्छा हो। बेचारे बच्चे एक जैसा पढ़ते ही रहते हैं। तो स्ट्रैटेजी वर्ड कम्स आउट फ्रॉम अ मिलिटरी ओरिजिन, इट्स अ मिलिटरी ओरिजिन टर्म। इट रिलेट्स टू वॉर, वेज टू विन ओवर योर एनिमी। हिंदी में बहुत आसानी से समझ में आता, रणनीति, रणभूमि के अंदर बनाई गई नीति। हमने उसका एग्जाम्पल देखा मूवी क्लिप में। तो उसको जब वो बोलते हैं इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिलिट्री डीलिंग विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर द एनिमी, अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? मास्टर प्लान, ग्रैंड डिजाइन, गेम प्लान, प्लान ऑफ एक्शन। पॉलिसी गलत प्रिंट हो गया, पॉलिसी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। प्रपोज्ड एक्शन, स्कीम, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट समझते हो? इंजीनियरिंग का कोई नक्शा देखा है? आपके घर बनता है या कोई इंटीरियर डिजाइनिंग होती है तो वैसा पेपर पे प्रिंट करके लाते हैं ब्लू कलर से। सो दैट्स कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट, कि ऐसा दिखेगा। पेपर पे आपको दिखा दिया, ये आपका कमरा है, ये आपका बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये गार्डन है, ये स्विमिंग पूल है। सुन के कितना अच्छा लगता है, बाद में देखा तो 3x3 का पॉन्ड निकला। तो वो ऐसे दिखाते हैं, बट दैट्स कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट। और बिजनेस को अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सिर्फ थ्योरेटिकली मिलता है। मतलब अभी और मैं आप और बैठे हैं मार्केट में, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके उसके कॉम्पिटिटर कब कहां तैयार हो रहा है पता ही नहीं रहता। आप एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च करो, जब तक आप लॉन्च करते हो उसके दूसरे ऑप्शंस मार्केट में 1.5 साल पहले तक लग नहीं रहा था कि कोई अमेजोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देगा। फिर पता चला टाटा तैयारी कर रहा है, फिर पता चला जियो भी आ रहा है। जब तक ये दोनों आए हैं वो मीशो अलग से निकल के आ गया बीच में से, अभी मीशो चल रहा है। और आप जनता मजेदार है, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा हम उसके पास जाएंगे। जनता सबसे बड़ी बिन पेंदे की लूटा है, इधर से उधर। कस्टमर से जितनी वफा की उम्मीद होती है ना, कस्टमर उतना ही बेवफा होता है। 50 रुपए का डिस्काउंट के लिए बदल जाता है, हाँ या ना? बिल्कुल है, कंपटीशन में तो ऐसा होता है। तो स्ट्रैटेजी क्या करवाती है हमसे?
क्या शॉपसी भी आ रहा है क्या अभी? हाँ, ये इधर से बोल रहे हैं ये ज्यादा है ना, सोशल मीडिया देखना बंद करो, बहुत ग्रुप पढ़ रहे हो। तो साहब बिजनेस को कैसे एनवायरनमेंट से डील करना है, स्टैटिक या डायनामिक? डायनामिक। और बिजनेस में सब सहयोग करते हैं या असहयोग करते हैं? असहयोग। सर द बिजनेस हैज टू रिस्पॉन्ड टू अ डायनामिक एंड अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल वर्ड मतलब अनफ्रेंडली। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर बने। ये दुनिया कितनी अजीब है। एज अ सेलर मैं चाहता हूं मेरी मोनोपोली हो, और एज अ बायर मैं चाहता हूं वैरायटी मिले। समझने वाले समझ गए, बाकियों को समझ ही नहीं पड़ी बोला क्या मैंने। समझ गए? ऐसा अज्यूम कर लूं, मतलब सेलर्स वांट कंपटीशन, ओ सॉरी, सेलर्स वांट मोनोपोली, बायर्स वांट कंपटीशन, एंड द paradox is we are sellers and we are buyers, we are same people, so both cannot happen. So when you pursue a strategy, so how do you define that? मतलब ये वैसी वाली बात है अकाउंट्स की क्लास में डिफाइन अकाउंटिंग ऐसा होता ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिंग, समराइजिंग, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा होना है ना। तो अब हमको स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन चाहिए, तो उसको समझने के लिए बोला था इट्स द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू हैव अ मार्केट पोजीशन। It's the game plan of the management to conduct its operations. It's the game plan of the management to attract and please customers, compete successfully and achieve organizational objective. अर्थात मैं एक फॉर्मल सूट खरीदना चाहता हूं, कोट, ट्राउजर, जैकेट, और प्रॉपर बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में अच्छा ड्रेस नहीं बनवाया, तो एक सूट बनवाने का मन है। विच इज द ब्रांड विच विल कम टू योर माइंड फर्स्ट? रेमंड्स। ये बोलने के लिए रेमंड्स ने पैसे दिए तुमको? नहीं। तुम्हारा कोई कमीशन है? नहीं। तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो कि तो कोई पेड प्रमोशन कर दो। कितने सालों से रेमंड्स द कंप्लीट मैन सिंस 1925, 100 साल पूरे करने वाला है सर। आज तक रेमंड्स वाले ने न तो प्लाजो बनाया, न क्यूलॉट्स बनाए, न साड़ी में साड़ी, रेमंड साड़ी, रेमंड बेबी वेयर, रेमंड के पैम्पर डायपर, क्यों नहीं आया सब? सर आता नहीं क्या इनको बाकी सब कुछ करना? इट्स द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव अ मार्केट पोजीशन। ये जो यहां पे बैठे हुए 125 और यहां बैठे हुए 150 लोगों ने मिलकर 275 लोगों ने अभी जो नाम लिया ना रेमंड सूट बनने पे, ये उसकी कमाई है कि सूट बनने पे नाम आए याद, तो रेमंड का ही आए। गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव अ मार्केट पोजीशन। अब उसके लिए कितने टेम्पटिंग ऑप्शंस छोड़े होंगे उसने लाइफ में, जब वो इतना बड़ा सूट लेंथ बना के बेच सकता है। हजारों का बनता है एक सूट। एंड व्हेन यू एक्चुअली पुट योर सेल्फ ऑन टू अ रेमंड सूट ना, एक आपको फील अलग आता है। मेरी जनरेशन वालों के लिए तो सूट अर्न करने वाली चीज होती थी। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई वाज टोल्ड यू रियली वांट टू वेयर अ सूट, अर्न फॉर योरसेल्फ। तो जो पहला सूट पहना खुद का, तो ऐसा सहेज के पहनता था कि ऐसा लगता बॉस अपन ने कुछ कमाया है। एंड यू ऑल आर ब्लेस्ड वेयर योर पेरेंट्स गेट यू अ सूट डन फॉर योर फेयरवेल। ओ आई फॉरगॉट यू डिडंट हैव वन, सॉरी। जिन जख्मों को वक्त भर रहा है मैं क्यों उन्हें छेड़े जा रहा हूं। सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 छेड़ दिया मैंने। कमिंग बैक टू द टॉपिक, गलत दिशा में चले गए हम। सर गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट, गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू हैव इट्स मार्केट पोजीशन, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस with all due regards to anybody's home। आपको कभी कोई एमवे टपरवेयर वाला पीछे पड़ा आपके? हो सकता है घर में ही हो, बट आपने एमवे और टपरवेयर वाले लोगों का जज्बा देखा है?
जैसे अगर वो टपरवेयर वाला प्लास्टिक की बोतलें बेचते हैं वो लोग, वो डब्बे, पर वो आंटी टपरवेयर हैज अ कॉन्शियस डिसीजन टू ओनली टेक विमेन इन देयर टीम. देयर आर नो मेल्स इन टपरवेयर. लड़कों को आवाज उठानी चाहिए. व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन? दे डोंट हैव. अब सर लड़कों को क्या करे जाएगा? लड़कों के लिए 15 साल तक एक डब्बा सेम चल सकता है. पिंक और ब्लू में क्या फर्क है? डब्बा तो डब्बा ही है ना. 50% ऑफ द वर्ल्ड के लिए फर्क है. इट इंक्लूड्स आवर मॉम ऑल्सो. शी गेट्स फेड अप ऑफ किचन स्टफ ना. मेरे को सब बदलना है अभी. है 2 साल बाद सब साफ. इट्स हर ऑफिस. शी डिजर्व्स टू चेंज इट. बट वो टपरवेयर वाले लोगों का पैशन देखा करो आप. सर ये जो बोतल है ना, इसका प्लास्टिक इतना बढ़िया है कि इसमें 15 दिन तक आप पानी रखोगे ना तो खराब नहीं होगा. कौन से ऐसे रेगिस्तान में हूं जो मैं 15 दिन तक एक बोतल में पानी रखूंगा? पहली बात. सर इसकी स्ट्रेंथ इतनी है. मेरा बोतल है, बम थोड़ी ना जो फेंक के मारना भाई. वो एमवे वाले आते हैं. सर हमारी टूथपेस्ट, जी सर बाकियों की लगती 40 मिलीग्राम, हमारी लगती है 6 मिलीग्राम. मैंने ए हेलो, ये सुबह नींद में नापेगा कौन? यहां तो जिंदगी इसी में निकल रही है. सुबह आधी नींद में अच्छा, अरे यार बेसिन में गिर गई. कितनों के साथ होता है ऐसा? अब बताओ यार, कौन नापेगा सुबह 6 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम? अब इसके आगे कुछ लोग उसमें से वापस निकाल के लगाए, मैं वो नहीं बोल रहा हूं. सर अब कुछ सीक्रेट बाथरूम में ही रहने चाहिए तो ही अच्छा है. सर ये लोग मेंबर्स के थ्रू ही बेचते माल, दोनों को दोनों. एमवे और टपरवेयर को आप देख लेना. आप इनको बोला आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो दुकान पे नहीं, नहीं दुकान पे नहीं बिकते. सर वो पूरा चैनल मार्केटिंग और कमीशन सिस्टम है उनका. सो इट्स द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस. फिर आता है गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स. तो सर अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स बोले तो अब आपको टीवी खरीदनी है तो टीवी की पैकिंग इंपॉर्टेंट है या टीवी के फीचर्स? और बिस्किट खरीदना है तो पैकेट. तो अट्रैक्शन और प्लीजिंग. आप टीवी बेचोगे तो गैलरी में डिस्प्ले करने पड़ते डेमो पीस. कार बेचनी है तो कार की पैकिंग नहीं चलती है, कार चलानी पड़ती है. इमेजिन द कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स प्रमोशन कॉस्ट for any automobile company if in India they are supposed to put up a demo car in 640 cities. ₹640 कार तो ऐसे ही निकल गई. सेल आई नहीं ₹1 की. So game plan of the management to attract and please, it's different every time. To compete successfully, I give full marks to Airtel to give a great fight to Reliance Jio. मजा आ गया देख के पिछले 3-4 साल में. मुझे लग रहा था ये भाई संभाल नहीं पाएंगे, बट गजब खेले ये लोग. एक अकेला ही लड़ा उनसे. वो लड़ा ऐसा है कि पसीना छुड़ा रखा है उसका. सेम लेवल ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं एंड एट टाइम्स समटाइम्स एयरटेल इज हायर. सो टू compete successfully, game plan of the management to compete successfully and achieve the organizational objectives. So what is the strategy? Hello sir, strategy is the game plan of the management to do MCA and CA. ये याद करने का स्टाइल है. गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू डू MCA and CA. So what is the strategy? Strategy is a game plan of the management to do, ऐसा हम याद रखेंगे. M stands for, C stands for, A stands for, another C and another A.
बराबर। अब मैंने ना इतिहास छुपा दिया आज तुम लोगों से। 1911 में सबसे पहले पॉलिसी पढ़ाना चालू करा हार्वर्ड में। फिर 1911 में पॉलिसी पढ़ाते पढ़ाते जब लोगों को लगा कि पॉलिसी से डे टू डे डिसीजन मेकिंग आ गई, फिर फ्यूचर प्लानिंग करने लगे तो बजटिंग आई। पर बजटिंग से भी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करने पड़े तो फिर ऑपरेशनल और प्लानिंग आने लगी। फिर प्लानिंग में भी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजी आई और बाद में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना। ये लाइन बोलने के लिए 2 पेज लगे मॉड्यूल को। मैंने वो सब छुपा दिया क्योंकि वो कहीं पे भी एग्जाम रेलेवेंस नहीं रखता। लेकिन आप सबसे विनती है, रोज जब क्लास खत्म होगी अगर मैं भूलता हूं तो तुम्हारी ड्यूटी है पूछना कितने पेज हो गए आज, और घर जाके आप पढ़ना, याद मत करना। दोनों में अंतर है। अब पढ़ने का ये मतलब नहीं मॉड्यूल खोला हो गया, रीड थ्रू। क्या होगा, आप इन शब्दों से जब तक दोस्ती नहीं करोगे ना तब तक इन शब्दों को लिखने की आदत नहीं पड़ेगी। फिर आप जनरल लैंग्वेज लिखोगे और जनरल लैंग्वेज में नंबर मिलने नहीं है आपका। जब ऐप में सब आप जुड़ जाओगे ना, मैं एक्चुअली आंसर शीट्स भी दूंगा उसमें आपको, उन बच्चों की जो पास नहीं हुए और उन बच्चों की जो पास हुए। तो आपके पास रेफरेंस रहेगा कि कैसा लिखने का है। तो आज कितना पढ़ा, हम कहां तक पहुंचे, उस पर जरा एक नजर मार ले, फिर आज की क्लास समाप्त कर देंगे। कहेंगे अरे 1 मिनट, गूगल क्रोम, it didn't shut down correctly. Okay. ए भाई इधर इधर 1 मिनट सुन लो। खुल जा सिम सिम। ये ध्यान रखना भाई, इधर सब लोग, ओए इस पे ध्यान रखना, आपके लिए सबसे ऊपर वाला रेलेवेंट है। तो आपके पास अगर स्टडी मटेरियल जब आए, फिजिकल आ गए क्या स्टडी मटेरियल, तो आ गए हैं तो अभी कुछ दिन लेकर आना रोज। एक किताब और बढ़ गई, ये रहा। ये देखो आज आपने मैंने 3 चीजें कर ली हैं। ए इधर बिजनेस पॉलिसी पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ा, ये 3 चीज करिए। इतना पढ़ाने के लिए इन्हें बिजनेस पॉलिसी देखो 1.3, ये 1911 वाली कहानी यहां से चालू हुई है हार्वर्ड से। ये मैंने एक लाइन में समझा दिया आपको पूरी। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, गिनती की 2 लाइनें हैं, उसको उन्होंने फिर समझाने के लिए, क्योंकि ये मॉड्यूल क्या सोच के बनाते हैं कि बच्चा खुद पढ़ रहा है और आप मेरे को फीस काय के लिए दोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। बट आप फिर से बोल रहा हूं, मॉड्यूल्स आर बाइबल, वर द बाइबल एंड विल रिमेन द बाइबल। उसकी लैंग्वेज से दोस्ती करने का एक ही तरीका है, आप उसे रेगुलरली पढ़ते रहो। आखिरी दिन नहीं होगा। यह स्ट्रैटेजी यहां से चालू करी अपन ने, और स्ट्रैटेजी आते आते हम लोग बस यहां तक आए हैं। ये मैंने आज आपको लाइन पढ़ाई है, कहाँ गई, नहीं नहीं ये थी इधर, ये रही। आज ये लाइन पढ़ी ना आखिरी वाली अपन ने, नहीं ये नहीं पढ़ी, सॉरी इधर है। हाँ ये रहा, गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट, दिख रहा है, यहां तक पढ़ा के लाया हूं मैं आपको। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 1.5 की शुरुआत तक, फॉर एग्जाम्पल के नीचे वाला पैराग्राफ तक पढ़ना है अपने को, पढ़ के मिलिए। और शुरू के 2-5 मिनट रोज। आपको कुछ शब्दों से परेशानी है तो आप पूछ सकते हो कि सर इसका मतलब क्या है, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।